back to my channel. This is Riddhi. So today this video is based upon how you can land up with an internship or placement in Red Hat. I know that most of you have heard about Red Hat, and if not, then you have to Google it around. So today I have a guy from my own college, that is शशांक पाठक. वो ऑफ कैंपस के थ्रू रेड हैट में इंटर्नशिप कर रहा है एंड आई होप दैट यू गेट सम insights from his experience. So let us go and see what he speaks. Okay, wait. Before going to the main part of the video, again the same thing that मैंने बहुत सारे placement process के बारे में बताया, बहुत सारे companies के placement process के बारे में बताया है, and if you want to see then follow the description box. वहाँ पे मैंने playlist का link दे दिया है, तो you can go and see. Now let's go to the main part of the video. Hi Shashank, how are you? Hi Riddhi, I'm good. How about you? Yeah, I'm good too. So it is very nice to hear that you have landed an internship at Red Hat. So congratulations for that. Thanks a lot. Okay, so Shashank, we will start with the formal introduction. अपना background कुछ बताओ. Okay, so basically currently I'm working as she told. मैं अभी Red Hat में काम कर रहा हूँ as a software engineering intern. और उससे पहले भी मैंने कई जगह intern as an intern काम किया है. और like I'm also from KIT, graduated in 2020. Yeah, that's all. Okay, so which branch you are from? From information technology. Okay, so you went for off-campus, I guess. Yeah, right. I went for off-campus placement only. Okay, so what was your CGPA when you went for this company? I think so. That time my CGPA, like from second year only, my CGPA is constant. It's around 8.8 only. So it was around that only. Yeah. So haven't you sat for any companies in KIT during the on-campus placement? No, I didn't sit for, or I should say, I was not allowed to sit for on-campus placement. I will tell you the whole scenario. That's because I went for an abroad internship in my third year summers. So if you remember, there was a cyclone in our area and our last exam was postponed. If you remember it. Yeah. Yes. So I was abroad at that time for my internship and I couldn't come back. So I had one backlog. So that backlog basically got cleared in my 8th semester. Okay. So for 1 long year, I had a backlog, so I was not allowed to sit for any of the companies. But let me clear it that for other guys that you are the ambassador from our college for Geeks for Geeks. So it is a very big achievement, and Yeah, thanks a lot. I guess most of the students from KIT might be knowing you. I guess so. Yeah, I also hope so. Okay, so can you tell us about the rounds which happened during your recruitment in Red Hat? Okay, so it was honestly a very long procedure. I gave a written round in the month of December. It was the first written round, and then there was a written round in the sense there was 2 coding questions and 15 or 16 MCQs were there. I don't remember exactly. And in the second round, there was again a coding round where 3 questions were there of coding. Okay. And then it was a complete void of 1 month. Like 1 month तक कोई भी response नहीं आया, तो I thought like कि ठीक है नहीं हुआ होगा. तो उसके बाद in the month of February, I think so, yeah, in the mid of February, I got contacted by them for the interview schedule, and there was one round of interview. Like it consisted of multiple things. Like the interview consisted of many things, which was asked in it, and then there was an HR round, and that's the procedure. Okay, so any question which you remember from the rounds, if you can share? Yeah, sure. So पहले राउंड में तो ऐसा हुआ था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे. The first one was spiral matrix, printing of spiral matrix, the coding one, and the second one was also very easy. Like it didn't require anything advanced knowledge or something like that. It's just like they just wanted to know if you can write the code and you're familiar with the syntaxes of the things in which you are coding. And MCQ जो थे उसमें सब कुछ था. OS था, DBMS था, output questions थे. Overall, it was a mixture of overall things. फिर टू बी ऑनेस्ट मैंने जब पहला राउंड दिया तो मेरे को लगा कि यार रेड हैट बड़ी कंपनी है, इतना आसान कैसे हो सकता है रिटन. तो बिकॉज आई रिमेंबर कि वो शायद 60 मिनट्स का टेस्ट था और मैंने उसे 22 या 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था पूरा. तो फिर मेरे को लगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है.
फिर उसके बाद उनका सेकेंड राउंड ऑफ रिटर्न आया और वो रियली रियली डिफिकल्ट था, मतलब मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा, क्योंकि उसमें मतलब पहला ही जो क्वेश्चन था, इट वाज ऑफ 60 मिनट्स, या इट वाज ऑफ 60 मिनट्स एंड 3 क्वेश्चंस वर देयर। और पहले क्वेश्चन, मेरे को 2 क्वेश्चन याद है, तीसरा क्वेश्चन मुझ पे हुआ भी नहीं था और मुझे आज तक याद भी नहीं कि करते कैसे। ओके। तो तो पहला क्वेश्चन था, वो मिक्सचर था, डीपी थी, डीपी प्लस ग्राफ था, मतलब इट वाज समवेयर अराउंड नैपसेक प्लस ग्राफ थिंग्स वर कंबाइंड इन इट। और सेकंड क्वेश्चन भी ग्राफ्स पे ही था, समथिंग ग्रीडी अप्रोच इन ग्राफ्स रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट पाथ और समथिंग लाइक दैट, बट वो डायरेक्ट नहीं था उसमें, मतलब इट वाज आई कैन से लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएसयू, डिसजॉइंट सेट यूनियन, प्लस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स इन ग्राफ्स। एंड द थर्ड ओके। क्वेश्चन एज आई सेड, लाइक मुझे याद ही नहीं क्या है। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। तो तुमने किस लैंग्वेज में कोडिंग की थी, और देयर वाज एनी रिस्ट्रिक्शन कि इस प्रॉपर लैंग्वेज में कोड करना है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इट वाज वेरी फ्लेक्सिबल, और उनका एक प्लेटफॉर्म है माई एनाटॉमी, जिस पर वो हमेशा ये कंडक्ट करवाते हैं सब। ओके। और मैंने सी प्लस इसमें किया। ओके। So in the third round, basically, it was an interview round, and it was taken by senior software engineer working over there. So वो राउंड काफ़ी चीज़ों से, मतलब काफ़ी चीज़ें कंसिस्ट करता है। तो पहला तो यही था कि मेरे रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे और जो मेरी पास्ट इंटर्न्स थी, जिसके बारे में पूछा कि तुमने उसमें क्या किया था। फिर उसमें मतलब दे ड्रिल अराउंड योर प्रोजेक्ट, लाइक कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या तुमने किया, हाउ यू कुड इम्प्रूव इफ़ यू आर लाइक गिवन अ चांस टू डू इट अगेन, और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव थी। सिंस मेरा तो रिसर्च वर्क था बेसिकली, उससे पहले तक जितना भी था, तो मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि रिसर्च वर्क में जनरली ये रहता है कि यू आर रीडिंग सम पेपर एंड लाइक एट द करंट स्टेट ऑफ आर्ट यू आर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स। तो यस। वही सारी चीज़ें थी। उसके बाद उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन, मतलब उसी में सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा था। तो दे आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ ग्रुप चैट, बेसिकली समवॉट लाइक व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, उसमें ग्रुप चैट होता है, तो उसका सिस्टम डिज़ाइन पूरा बताना था कि कैसे आर्किटेक्चर होगा पूरे हमारे सिस्टम का, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, लाइक बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कई सारे कितने सर्वर्स रखोगे तुम बेस्ड ऑन द ट्रैफिक जितना आ रहा है, फिर लोड बैलेंसर वगैरह कैसे काम करता है, क्या यूज़ होता है उसके बिहाइंड एल्गोरिथम, तो वही सारी चीज़ें थी। तो इट वाज अ प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन, इफ आई कैन से। तो कितना टाइम दिया गया था इस चीज को करने के लिए? The interview went around like for 50 to 60 minutes, I think so. ओके। Yeah, or more than that. I'm not sure, but I remember like at least 60 minutes over there. ओके। सो वाज दिस ऑनलाइन राउंड, मतलब तुम घर बैठे बैठे दिए, और यू हैव टू गो समवेयर एल्स? No, it was online only. Like they scheduled an online. They have their own platform for this as well. हाँ ओके, ठीक है। सो तुमने जब रेड हैट के लिए अप्लाई किया था, तो यू वेंट थ्रू एनी रेफरल काइंड ऑफ थिंग, और तुमने कहीं लिंक देखा तो तुमने अप्लाई कर दिया? हाँ, तो इसमें ये हुआ था कि मैंने लिंक्डइन पे अराउंड दिसंबर, उनकी एक टीए है टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, तो उनका पोस्ट था कि न्यू फ्रेश ग्रेड्स जो भी इंटरेस्टेड है फॉर अ 6 month इंटर्नशिप एट रेडिट, तो वो मतलब लाइक दे कैन डीएम मी और समथिंग लाइक दैट, जैसे लिंक्डइन पे पोस्ट होते हैं। देन आई मैसेज्ड हर, सो शी रिवर्टेड बैक विद अ मेल ऑफ द लिंक ऑफ द टेस्ट, सो उसके बाद वैसे प्रोसीजर फॉरवर्ड हो गया। Okay, so you are currently an intern, or will give you a full-time offer too? सी लाइक रेडिट का ये सीन है कि फ्रेश ग्रेड्स को वो कभी फुल टाइम हायर नहीं करते, दे ऑलवेज Okay. हैव अ क्राइटेरिया लाइक दे विल गिव अ 6 month इंटर्नशिप एंड आफ्टर दैट दे विल कन्वर्ट, सो So करेंटली आई एम इन मतलब दैट 6 month इंटर्न पीरियड। okay, so ये based upon your performance होगा whether they'll turn you into full time or not. या लाइक एज आई वाज टोल्ड इन देयर इंडक्शन प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा था कि कन्वर्जन रेशियो 85% टू 90% होता है, लाइक आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट सेट, बट स्टैट्स क्या है, बट 85% तो होता है Okay. कन्वर्जन, लाइक कन्वर्जन रेट इज रियली हाई ओवर So last question, I guess, that is an advice from your side to your juniors. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरी जर्नी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी रही है, और मतलब ऐसा रहा कि मैंने राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। फर्स्ट ईयर तो मेरा ये था कि हाँ CGPA थोड़ा सही कर लेते ताकि एट द एंड तक वो ज़्यादा नीचे ना जाए, तो आई ट्राई टू मेंटेन अबव 9 इन द फर्स्ट ईयर। उसके बाद सेकेंड ईयर में आई वाज लाइक, सिंस सेकेंड ईयर में तो कोई कंपनी साइड हार्डली इंटर्न करता है,
क्योंकि उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, उतनी नॉलेज भी नहीं होती। तो आई जस्ट थॉट टू गेट एन इंटर्नशिप एट वन ऑफ द IITs। सो मेरे को IIT इंदौर में मैंने रिसर्च इंटर्न किया। फिर उसके बाद आफ्टर गोइंग ओवर देयर, लाइक आई विल बी टेलिंग इन द थिंग्स इन दिस वे सो दैट यू कैन कनेक्ट द होल जर्नी ऑफ माई कॉलेज कि कैसे Okay. कैसे क्या क्या रहा। तो उसके बाद व्हेन आई वेंट देयर, सो like obviously like the people in the IITs are really great and they have a great exposure to the things। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उन 3 मंथ में मेरी भी ग्रूमिंग काफ़ी हुई, मतलब मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली कि क्या क्या होता है क्या नहीं। तो आई रिमेंबर वन इंसिडेंट कि मेरा एक को इंटर्न था और वो मेरे को बता रहा था कि हमारे कॉलेज के सीनियर फॉरेन इंटर्न गए हैं। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक, ओह लोग फॉरेन भी आते हैं इंटर्न करने, मेरे को पता ही नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ से, फिर जब मैं आया तो देन इन द थर्ड ईयर आई अप्लाइड फॉर अ इंटर्नशिप कॉल्ड माइटेक्स। तो माइटेक्स इज लाइक वर्ल्ड्स मोस्ट prestigious internship in the sector of research side, Okay. and it's fully funded, and moreover it has more perks like अगर आप उस कंट्री में मास्टर्स करने जाते हो तो देन ऑल्सो दे गिव यू स्कॉलरशिप फॉर इट। तो Great. इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम। तो लकीली मेरा माइटेक्स में हो गया था। देन आई वेंट देयर फॉर माई रिसर्च इंटर्न एंड आई केम बैक इन ऑगस्ट। सो एट दैट टाइम लाइक इवन इफ आई वुडंट हैव मिस्ड माई एग्जाम, तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज जा चुकी होती हैं अगस्त तक, लाइक हाँ. स्टार्टिंग में। तो सिंस आई वाज वेरी श्योर कि नहीं यार मेरा तो ऑन कैंपस बैठने का सीन ही नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा टच भी छूट गया था DSLO से, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस की उस वक्त कि हाँ ऑफ कैंपस देते हैं, ट्राई करते हैं। तो हैकर अर्थ में मैंने देखा था काफ़ी हायरिंग चैलेंजेस निकालती रहती कंपनीज, तो वो काफ़ी सही होते हैं। तो मैंने जब दिया तो आई रिमेंबर कि मेरे से 6-7 लाख की कंपनी भी होती थी, तो उसमें भी कॉल नहीं आता था, इट डिस्पाइट आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो मेरे को लगा कि ये तो मतलब अजीब ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है। तो देन आई रियलाइज एक फैक्ट कि अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस रखो कि ठीक है अगर आप कर भी ले रहे हो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आगे और ट्राई हाँ. करते रहो। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ कंपनीज में आप दे सकते हो। हायरिंग चैलेंजेस दो, खूब सारे हायरिंग चैलेंजेस दो, एक ना एक में तो कॉल आएगा ही आएगा। तो आई रिमेंबर देयर वाज अ कंपनी नेम मॉबस्टेक। वो मेरी पहली कंपनी थी जिसका मैंने हायरिंग चैलेंज निकाला था और मेरे को आगे तक प्रोसीजर हुआ था। इट वाज अ वेरी गुड कंपनी। तो ये था। और ऑफ कैंपस में ये है कि सिंस लाइक ऑन कैंपस तो ये रहता है कि पूल ऑफ स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के होते हैं, तो अपने को थोड़ा आइडिया रहता है कि हाँ ये ऐसा है, अपना Yes. लेवल कॉलेज में ये है, तो हाँ निकल जाएगी या हाँ. नहीं निकलेगी। कंपटीशन कम रहता है वही ऑन कैंपस. ऑफ कैंपस में रहता है कि पीपल फ्रॉम टायर 2 टायर 3 कॉलेज जहाँ पर अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे लोग हैं कोडिंग में, बट स्टिल उनके कॉलेजेस में कंपनीज नहीं जा रही, तो दे हैव ओनली दीज ऑप्शंस टू ट्राई फॉर गुड कंपनीज। तो वो लोग Yeah. भी आ जाए तो कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो जाता है। और उस केस में यही है कि मेजोरिटी पार्ट आई वुड से कि लक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है ऑफ कैंपस निकालने में। मतलब इट्स लाइक कि दिन रहा तो निकल जाएगा, वरना आपने सब कुछ भी कर लिया तब भी नहीं निकलने वाला है। Yeah. तो इट्स जस्ट यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। तो बेसिकली यही है कि अपनी मतलब मेरा ये है कि अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग रखो कि इवन इफ यू गेट वन चांस ऑफ कैंपस तो तुम उसे क्रैक कर सको। Hmm. तो आई विल से लाइक ओवर प्रिपेयर योरसेल्फ एंड देन अप्लाई फॉर इट। Yeah. Okay. So this तो ऑफ कैंपस के बारे में हो गया, बट इफ आई वांट टू आस्क कि अगर मान लो कोई बच्चा चाह रहा है कि मेरा कोडिंग स्ट्रॉन्ग कैसे हो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सो व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू देम कि कोडिंग के पे कैसे मेहनत करना होगा. ओके, सो उसके लिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, एक ब्रीफ डिटेल देता हूँ। चीज़ें मेरे साथ भी मैंने बहुत गलतियाँ की, तो होपफुली वो लोग आगे ना करें। तो इट वाज लाइक आई स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव कोडिंग फ्रॉम अराउंड सेकेंड ईयर, आई थिंक सो, लाइक इन द थर्ड सेमेस्टर इटसेल्फ। तो तब मेरे से क्वेश्चन होते नहीं थे। आई रिमेंबर लाइक आई यूज्ड टू डू क्वेश्चन ऑन कोड फोर्सेस लाइक div to A or B problem, and I was not able to solve even those problems. Those are considered very easy problems. So then I decided like okay, no worries, I will just try to explore the questions and see the solution at first. Like मैंने शायद अराउंड 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन सिर्फ उनके सॉल्यूशन देखे, समझाए कैसे चीज़ों को अप्रोच करते हैं। कोई क्वेश्चन आता है तो उससे कैसे हमें जो आता है उसे एज अ टूल लेकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बस ऑब्जर्व किया था 100 and 120 क्वेश्चन। उसके बाद मेरे को रिदम बन गया कि हाँ क्वेश्चन आता है। तो मतलब स्टार्टिंग में जब हम कोई नया क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ी घबराहट से होती है कि यार व्हाट इज दिस, लाइक हाउ टू Yeah. अप्रोच फॉर इट, एंड like even the naive approach is not coming in the mind, sometimes ये भी Hmm. हो जाता है।
तो उससे मेरा एक रिदम बन गया कि हाँ, आई वाज एबल टू थिंक कि चलो मैंने पास में ये चीज़ें कर रखी हैं, तो क्या उसको मिलाकर कुछ मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। तो आई थॉट इन दिस वे। और उसके बाद मैंने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया, लाइक आई सॉल्व अराउंड 130 प्रॉब्लम्स और 150 प्रॉब्लम्स ऑन स्पॉट्स SPOJ. It's a very good site. Like if you solve 180 problems from the starting on the SPOJ, it consists of everything you require, everything. Like they are very much sorted in a nice manner. Like I think so. And then on core forces also, I solved around 200 problems or more than 200 problems. This was around my second year and third year. Okay, so And the then best time would be around second year only in order yeah, to. it's and I would say like as I'm seeing nowadays कि लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। मतलब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अपने 2-3 साल पहले उतना नहीं था, अवेयरनेस थी बट उतनी नहीं थी। हाँ अब तो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे मचा रहे होते हैं सीरियसली। तो यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर लो। हाँ और उसके बाद फिर मैंने इसमें भी काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए। मतलब मैंने उसमें मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व किए थे, तो वो भी हेल्प किया। वही है, मतलब एट द एंड में ये कहूँगा कि प्रैक्टिस ऐसे करो कि तुम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ताकि इफ़ यू एनकाउंटर ए न्यू क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू थिंक ओके like is this question having some taste to the problem I have solved before, because in that way you will be able to combine the logic and ultimately reach to a solution. yeah. Yeah. Okay. Yeah. So I guess that's it, Shashank. So thanks a lot for sharing your experience. Yeah, thanks a And lot for having me. yeah, thank you. And yeah, you can also, if you want, then you can also send me your LinkedIn profile link if somebody wants to contact you, then might be. Okay, sure, So sure, definitely. yeah. Yeah, Okay. Thanks. yeah, thanks a lot. So I hope that this video is very helpful for you, and if you have any queries तो फिर से कमेंट करो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कमेंट करो, और यू कैन कम्युनिकेट विथ मी आइदर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड ऑल्सो यू कैन सी ओवर हियर। Yeah, and in order to communicate with Shashank, his LinkedIn profile link is also mentioned in the description box, so you can go there and visit his profile and you can just communicate with him. So I hope that you like my content, and if so, then please like and share my video and also subscribe my channel. Thank you. See you in the next video.